غریب مزدور کی کہانی، حضرت غوث پاک کا کرم۔ کبھی کبھی زندگی انسان کو ایسی راہوں پر لے آتی ہے جہاں ہر دن ایک نئی آزمائش اور ہر رات ایک نئی تھکن لے کر آتی ہے۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی مزدور کی ہے جس کی زندگی غربت اور فاقوں کی گرداب میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس کے پاس نہ آرام دہ بستر تھا، نہ وسیع مکان، نہ کھانے پینے کی وسعت، نہ دنیاوی آسائشیں، مگر اس کے دل میں ایک ایسی چمک تھی جو دولت مندوں کے محلوں میں بھی ڈھونڈے سے نہ ملتی۔ یہ مزدور ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کا نام عبدالسلام تھا۔ گاؤں میں لوگ اسے سلام مزدور کے نام سے جانتے تھے۔ دن بھر کھیتوں میں ہل چلاتا، کبھی لکڑیاں کاٹتا، کبھی اینٹیں ڈھوتا، کبھی کسی کے جانوروں کی دیکھ بھال کرتا۔ جو بھی کام ہاتھ آ جاتا وہ کر لیتا، لیکن اس سب کے باوجود شام کو جب وہ اپنے جھونپڑے میں واپس آتا تو چولہے پر اکثر دھواں نہیں ہوتا تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی بیوی اور اس کے 3 چھوٹے بچے تھے۔ بچے معصوم تھے، بھوک کے مارے اکثر رات کو روتے اور عبدالسلام کے دل میں چھریاں چل جاتے۔ بیوی صابرہ ایک نیک عورت تھی۔ وہ اکثر اپنے شوہر کو تسلی دیتی، سلام، رزق کا دینے والا اللہ ہے، ہم اس کی رضا پر راضی رہیں گے۔ یہ بھوک بھی آزمائش ہے اور انشاءاللہ ایک دن اللہ اپنے خزانے سے ہمیں عطا کرے گا۔ یہ جملے عبدالسلام کو وقتی سکون دیتے، مگر دل کا بوجھ کم نہ ہوتا۔ وہ جب بچوں کی طرف دیکھتا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ روزمرہ کی مشقت، ہر صبح وہ اندھیری فجر کے وقت اٹھتا، وضو کرتا، نماز پڑھتا اور اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ، آج میرا دن آسان کر دے، میرے بچوں کو بھوک سے بچا لے۔ پھر کھیتوں کی طرف نکل پڑتا، کبھی گھنٹوں دھوپ میں کام کرتا، کبھی مٹی اور پسینے میں نہایا ہوا واپس آتا۔ مزدوری کا معاوضہ بہت تھوڑا ملتا، لیکن وہ اسے اللہ کی امانت سمجھ کر گھر لے جاتا۔ راستے میں وہ اکثر سوچتا، یہ زندگی آخر کب تک؟ کب تک میں اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کے لیے یوں خاک چھانتا رہوں گا؟ ایک دن ایسا بھی آیا کہ 3 دن تک گھر میں کچھ پکا نہیں۔ بچے رو رو کر چپ ہو جاتے، مگر آنکھوں کی اداسی ان کی بھوک کی گواہی دیتی۔ عبدالسلام نے گاؤں کے ایک زمیندار کے پاس جا کر مزدوری مانگی۔ زمیندار نے حقارت سے دیکھا اور کہا، کام تو میں دوں گا، مگر مزدوری آدھی دوں گا، لے گا تو لے، ورنہ جا یہاں سے۔ عبدالسلام کا دل ٹوٹ گیا، مگر بچوں کی بھوک نے اسے مجبور کیا کہ وہ شرط مان لے۔ اس نے دن بھر سخت مشقت کی اور شام کو جب چند سکے ہاتھ میں آئے تو اس کے دل میں ہزاروں سوال اٹھے۔ کیا میرا محنت کا پسینہ اتنا سستا ہے؟ کیا غریب کا کوئی حق نہیں؟ دل کی پکار رات کو جب سب سو گئے تو عبدالسلام جھونپڑی کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دل سے پکارا، یا اللہ، میں بہت تھک گیا ہوں، میرے پاس نہ کچھ ہے نہ کسی کا سہارا۔ اگر تیرا کرم نہ ہوا تو یہ زندگی ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اس کی آواز میں ایسی سچائی اور ٹوٹ پھوٹ تھی کہ لگتا تھا آسمان کے دروازے کھل گئے ہوں۔ ایک خواب، اسی رات جب وہ تھکن سے سو گیا تو اسے خواب میں ایک روشن چہرے والے بزرگ نظر آئے۔ وہ فرمانے لگے، اے عبدالسلام، صبر کر، اللہ اپنے دوستوں کے وسیلے سے تجھے نوازے گا۔ بغداد کی طرف جا، وہاں اللہ کے ولی حضرت عبد القادر جیلانی ہیں، ان کی صحبت تیرے دل کو سکون اور تیری زندگی کو بدل دے گی۔ عبدالسلام نیند سے جاگا تو اس کا دل ایک نئے عزم سے بھر گیا۔ اس نے سوچا، یہ خواب محض خواب نہیں، یہ تو اللہ کا اشارہ ہے۔ اگلے دن اس نے اپنی بیوی سے کہا، صابرہ، میں بغداد جانا چاہتا ہوں، وہاں ایک اللہ کے ولی ہیں جن کے بارے میں خواب میں اشارہ ملا ہے، شاید ہماری تقدیر وہیں سے بدلے۔ بیوی نیا دن اور نئی فکر عبدالسلام کے دل میں خواب نے ایک چراغ روشن کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سفر طویل اور کٹھن ہوگا، مگر امید کی ایک کرن نے اس کے دل کو ہلکا کر دیا تھا۔ صبح کے وقت اس نے مزدوری پر جانے کے بجائے مسجد کا رخ کیا۔ وہاں 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ، تو ہی میرا سہارا ہے، تو نے مجھے خواب میں راستہ دکھایا ہے، اب میری مدد فرما، مجھے اپنے ولی کے قدموں تک پہنچا دے۔ بیوی اور بچوں سے وداع سفر پر نکلنے سے پہلے اس نے اپنی بیوی صابرہ کو قریب بٹھایا، بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ دل میں طوفان تھا مگر چہرے پر عزم کی جھلک تھی۔ صابرہ نے روتے ہوئے کہا، سلام، راستہ لمبا ہے، ہمارے پاس زیادہ راہ بھی نہیں۔ عبدالسلام نے جواب دیا، میری جان،
ज़्यादा राह की कमी है, लेकिन अल्लाह पर यकीन मेरा सबसे बड़ा सरमाया है। हज़रत गौस पाक के वसीले से अल्लाह ज़रूर करम करेगा। बच्चे अपने बाप के कदमों से लपट गए। अब्दुल सलाम ने उन्हें गले लगाया और आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, मेरे ये फूल तेरे उमान में हैं। सफ़र का आगाज़ अब्दुल सलाम बगैर ज़्यादा सामान के निकल खड़ा हुआ। हाथ में एक लाठी थी, बगल में पुराना कपड़ा और रोटी का एक टुकड़ा। गांव के लोग उस पर हंसते हुए कहते, आओ सलाम, कहाँ बगदाद जा रहा है? ये सब ख्वाब व ख्याल है। एक गरीब मजदूर कभी वलियों के करीब नहीं पहुंच सकता। मगर अब्दुल सलाम के कदम रखने वाले न थे। वो जानता था कि दुनिया वाले कुछ भी कहीं, मगर अल्लाह की रजा सबसे बड़ी है। रास्ते की आजमाइशें सफर कई दिनों पर मुहित था। कभी वो रेगिस्तान की तपती धूप में जलता, कभी जंगल की तारीकी में रास्ता भटक जाता। कई बार प्यास से जबान सूख गई। एक दिन तो उसकी हालत ये हो गई कि वो ढाल होकर जमीन पर गिर गया। उसने दिल ही दिल में पुकारा, या अल्लाह, अगर तेरा वली मेरा मुकद्दर है तो मुझे मौत से पहले वहां पहुंचा दे। इसी लम्हे एक काफला वहां से गुजरा। काफले के सरदार ने उस पर नजर डाली और कहा, यह गरीब मुसाफिर लगता है, पानी दो। यूं अल्लाह ने उसकी जान बचाई। लोगों के रवैये रास्ते में हर जगह उसे अच्छे और बुरे रवैयों का सामना हुआ। कुछ लोग उसे रोटी खुला देते, कुछ दरवाजे से धके दे देते, मगर उसका दिल हर हाल में कहता, ये सब आजमाइश है, असल मंजिल अभी बगदाद है। दुआ और सब्र की ताकत रात को वो सत्तारों के नीचे लेटकर कुरान के चंद सूरतें दोहराता जो उसे याद थीं। उसकी आंखों से आंसू बहते और जबान से दुआ निकलती, या अल्लाह, मैं तेरे वली के वसीले से तेरे करीब आना चाहता हूं। मेरे कदमों को मजबूत रख। यही दुआ उसके सब्र को ताकत देती। बगदाद की झलक महीनों की मसाफत के बाद आखिरकार बगदाद की सरजमीन नजर आने लगी। दौर से बुलंद मीनार्स और मस्जिदों की अजान की आवाज उसके कानों में पहुंची तो उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सजदे में गिरकर कहा, शुक्र है या अल्लाह, तूने मुझे अपने महबूब के शहर तक पहुंचा दिया। मुलाकात की आरज़ू। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि वो हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी के दरबार में पहुंचे। उसने सोचा, क्या मैं इतना खुश नसीब हूंगा कि उनके कदमों में बैठ सकूं? क्या उनकी दुआ मेरे नसीब के दरवाजे खोल देगी? यही सोच उसके दिल को बेकरार कर रही थी। बगदाद में पहली सुबह अब्दाल सलाम जब बगदाद की सरजमीन पर दाखिल हुआ तो उसकी आंखों में आंसू थे। ये शहर उसके लिए अजनबी था, लेकिन दिल में एक सुकून उतर आया था। गलियों में हलचल थी, लोग बाजारों में मसरूफ थे। हर तरफ इल्म और दीन की खुशबू फैली हुई थी। बगदाद उस जमाने में इल्म और इरफान का मरकज था। अब्दुल सलाम थकन से नढाल होकर एक मस्जिद के सहन में बैठ गया। वहां अजान की आवाज बुलंद हुई तो उसके दिल को अजीब राहत मिली। नमाज के बाद वो मस्जिद के इमाम के करीब गया और आजिजी से पूछा, हजरत, मैं दूर दराज गांव से आया हूं। मेरा मकसद ये है कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी की खिदमत में हाजिर हो सकूं। क्या आप मुझे उन तक पहुंचा सकते हैं? इमाम साहब ने उसे मुस्कुराकर देखा और फरमाया, बेटा, तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें यह शौक पैदा हुआ, लेकिन उनके दरबार तक पहुंचना हर एक के नसीब में नहीं होता। सब्र, इखलास और आजिज़ी चाहिए। पहला मंजर। दरबार का कुछ दिन की तलाश और दुआओं के बाद वो दिन आया जब अब्दुल सलाम को हजरत गौसल आजम के मदरसे का रास्ता मिला। मदरसा में तलबा कुरान और हदीस पढ़ रहे थे। फजा में नूरानियत और सुकून था। अब्दुल सलाम का दिल कांपने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर गया। वहां एक नूरानी शख्सियत जलवा अफरूज थी। चेहरे पर जलाल और जमाल दोनों थे। आंखों में वो गहराई थी कि गविया दिलों के भेद जानती हूं। ये थे हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल सलाम बेअख्तियार उनके कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, या शेख, मैं एक गरीब मजदूर हूं। भूख, फाके और गुर्बत ने मेरा जीना दूभर कर दिया है। ख्वाब में इशारा मिला कि आपके पास आऊं, आप ही मेरी रहनुमाई करें। हजरत गौस पाक का कलाम हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने शफकत भरी निगाह से उसे देखा और फरमाया, बेटा, दुनिया की भूख और तंगी असल आजमाइश है। अल्लाह अपने बंदों को उन आजमाइशों के जरिए आजमा कर उन्हें अपने करीब करता है। जो सब्र करता है वो कामयाब होता है। याद रख, असल दौलत माल और जर नहीं, बल्कि अल्लाह की रिजा है। अब्दुल सलाम की आंखों से आंसू बहते रहे। उसने अर्ज किया, हजरत, मैंने तो दुनिया के सुख देखने की कभी ख्वाहिश भी नहीं की। मेरा दिल बस ये चाहता है कि मेरे बच्चे भूखे न सोएं और मेरा दिल अल्लाह की याद से मुतमईन रहे। हजरत ने फरमाया,
तुम्हारा ये इखलास ही तुम्हारा सबसे बड़ा सरमाया है। तुम यहाँ कुछ दिन हमारे पास रहो। देखो, सोहबत का असर दिल को बदल देता है। सोहबत की पहली तासीर चंद दिन हजरत गौस पाक की महफिल में बैठने के बाद अब्दुल सलाम के दिल की दुनिया बदलने लगी। वो देखता कि हजरत किस तरह कुरान की आयात बयान करते हैं, किस तरह आजिजी और इनकिसारी के साथ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। वो मजदूर सोचता, यही असल जिंदगी है। दौलत और शान और शौक सब फानी हैं। हकीकत यह है कि इंसान अल्लाह के करीब हो जाए। अजीब कर्म, एक दिन अब्दुल सलाम मदरसा के सहन में बैठा रो रहा था कि हजरत गौस पाक वहां से गुजरे। उन्होंने पूछा, क्यों रोते हो बेटा? अब्दुल सलाम ने कहा, हजरत, मेरे दिल की भूख खत्म हो गई है, मगर मेरे बच्चे भूखे हैं। हजरत ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, तो अपने इस बंदे की गुर्बत को अपने खजाने से बदल दे। इसी लम्हे बगदाद के एक रईस मदरसे में दाखिल हुए। वो हजरत को सलाम करके बोले, हुजूर, मेरे दिल में ख्याल आया है कि मैं एक गरीब खानदान की कफालत करूं। हजरत मुस्कुराकर बोले, ये सामने अब्दुल सलाम है, उसकी तरफ तौजा करो। यूं अल्लाह के करम से अब्दुल सलाम के घर के दिन बदलने लगे। अब्दुल सलाम का अहद, इस एहसान के बावजूद अब्दुल सलाम का दिल दुनियावी आसाइशों की तरफ नहीं भागा। उसने हजरत के कदमों में बैठकर कहा, हजरत, मैं अहद करता हूं कि अब अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके बंदों की खिदमत में गुजारूंगा। हजरत गौस पाक ने फरमाया, यही तुम्हारा असल सरमाया है बेटा। याद रखो, गरीब का सब्र अल्लाह के नजदीक बादशाह के तख्त से ज्यादा कीमती है। अब्दुल सलाम जब से हजरत गौस पाक की मजलिस में शामिल हुआ था, उसके दिल का नक्शा बदलने लगा। पहले वो सिर्फ जिस्मानी मेहनत को ही असल कमाल समझता था, लेकिन अब उसने जाना कि असल कमाल दिल को पाक करना और अल्लाह के करीब होना है। वो देखता कि कैसे बड़े बड़े उलमा, सादात और आम लोग हजरत की महफिल में आजिजी के साथ बैठते। हजरत का हर जमला गोया दिल में उतर जाता। उनके अल्फाज में ऐसा नूर था कि सुनने वाला अपनी दुनिया भूल जाता। अल्लाह पर भरोसा, एक दिन हजरत गौस पाक ने मजलिस में फरमाया, लोगो, अल्लाह पर भरोसा करना सीखो। जो बंदा अल्लाह पर तवक्कल करता है, उसका रिज्क उसके पास खुद चलकर आता है। दुनिया वालों के दर पर झुकने वाला जलील होता है और अल्लाह के दर पर झुकने वाला इज्जत पाता है। ये अल्फाज सुनकर अब्दुल सलाम का दिल लर्ज उठा। वो जान गया कि उसकी गुर्बत, उसकी भूख, सब एक इम्तिहान था ताकि वो अल्लाह पर भरोसा सीखे। दिल को हसद और लालच से पाक रखो। एक और दिन हजरत ने फरमाया, जो दिल लालच और हसद से भर जाए, वो कभी अल्लाह का कर्ब नहीं पा सकता। जो गरीब है, उसे अपने दिल को साफ रखना चाहिए। अगर उसके पास कम है तो सब्र करे, क्योंकि अल्लाह के नजदीक सब्र सबसे बड़ी दौलत है। अब्दुल सलाम ने सोचा, मैंने कितनी बार अपने दिल में सोचा कि काश मैं भी अमीर होता, लेकिन आज समझ आया कि असल अमीरी दिल की सफाई है, नीयत की पाकीज़गी। हजरत अक्सर कहते, ऐमाल का दारोमदार नीयत पर है। अगर मजदूर मजदूरी उस नीयत से करे कि अपने बच्चों को हलाल खुलाए, तो उसकी मजदूरी अल्लाह के नजदीक इबादत है। ये जमला अब्दाल सलाम के दिल में बजली की तरह कौंध गया। उसने अहद किया कि अब वो हर काम सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए करेगा। सोहबत का कमाल दिन गुजरते गए। अब्दाल सलाम की शख्सियत में अजीब सी तब्दीली आने लगी। उसकी आंखों में इत्मीनान, जबान पर शक्र और दिल में अल्लाह का जिक्र रहने लगा। गांव का वही मजदूर जो कभी गुर्बत पर शकवा करता था, अब बगदाद के बाजार में भी अगर कोई उसे हकारत की नजर से देखता, तो वो मुस्कुरा देता और कहता, ये दुनिया चंद दिन की है, असल इज्जत अल्लाह के पास है। ख्वाब में बशारत, एक रात अब्दुल सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अंधेरे रास्ते पर चल रहा है। अचानक एक नूरानी हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोशनी की तरफ ले गया। जब उसने ऊपर देखा तो वो हजरत गौस पाक का चेहरा था। हजरत ने फरमाया, बेटा, तुमने सब्र किया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसानी के दरवाजे खोल दिए। नींद से जागते ही उसके दिल में यकीन बढ़ गया कि अब उसकी जिंदगी का रख बदलने वाला है। खिदमती खलक का जज्बा, हजरत गौस पाक ने अब्दुल सलाम से फरमाया, बेटा, अगर अल्लाह ने तुम्हें रिज्क दिया है, तो उसे सिर्फ अपने लिए ना रखो। दूसरों की भूख मिटाओ, गरीबों को खिलाओ, यतीमों को सहारा दो। याद रखो, जो दूसरों के लिए आसानी करता है, अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा करता है। ये नसीहत अब्दुल सलाम के दिल में ऐसे रच बस गई कि उसने सोचा, अगर मुझे कुछ मिला तो सबसे पहले मैं दूसरों के साथ बांटूंगा। नसीहत का अमली असर कुछ दिनों बाद
एक यतीम बच्चा मदरसे के दरवाजे पर आया, भूख से ढाल। अब्दुल सलाम के पास उस दिन सिर्फ एक रोटी थी। उसने बगैर सोचे वो रोटी उस बच्चे को दे दी और खुद भूखा सो गया। अगली सुबह हजरत गौस पाक ने मजलिस में फरमाया, आज हमारे दरमियान एक बंदे ने अपनी भूख पर सब्र करके दूसरे को खिलाया है। खुश हो जाओ, अल्लाह ने उसके लिए अपने खजानों के दरवाजे खोल दिए हैं। ये सुनकर अब्दुल सलाम की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे ये अल्फाज उसी के लिए थे। असल दौलत का इदराक अब अब्दुल सलाम ने यह समझ लिया कि असल दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि सब्र, शक्र और खदमत में है। उसने अपने दिल में यह नक्श कर लिया कि मैं अब सिर्फ एक मजदूर नहीं रहा, मैं अल्लाह का वो बंदा हूं जिसे उसके वली की सोहबत नसीब हुई है। पहले वो एक ऐसा मजदूर था जो भूख और गुर्बत की वजह से हर दिन गमगीन रहता था, लेकिन अब उसके दिल में एक सुकून उतर आया था। उसने जान लिया कि भूख और फाका असल मसला नहीं, बल्कि असल दौलत अल्लाह की रिजा है। अब जब भी वो मजदूरी करता, उसके दिल में ये नीयत होती, मैं अपने बच्चों को हलाल खिलाने के लिए काम करता हूं और हलाल रोजी कमाना भी इबादत है। ये सोच उसकी मेहनत को इबादत में बदल देती। अल्लाह की मदद। कुछ अरसा गुजरने के बाद बगदाद के एक रईस ने अब्दाल सलाम को अपने घर बुलाया। उसने कहा, मैं हजरत गौस पाक के अरशाद पर तुम्हें अपना खास खादिम रखना चाहता हूं। तुम्हारी जिम्मेदारी ये होगी कि मेरे गोदाम का इंतजाम संभालो। यह सुनकर अब्दाल सलाम की आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल ही दिल में कहा, अल्लाह ने मेरी गुर्बत को इज्जत से बदल दिया। अब उसके पास रोजगार भी था और इज्जत भी, लेकिन उसका दिल दुनियावी आसाइशों में न बहका। वो दिन रात अल्लाह की याद में डूबा रहता। शुक्रगुजारी अब्दुल सलाम की बीवी साबरा जब अपने शौहर को देखती तो हैरान हो जाती। वो कहती, सलाम, पहले तुम परेशान रहते थे, लेकिन अब तुम्हारे चेहरे पर एक नूर है। ये सब किसका असर है? अब्दुल सलाम मुस्कुराकर कहता, ये सब हजरत गौस पाक की सोबत का फैज है। उन्होंने मुझे सिखा दिया है कि शक्र गुजार दिल सबसे बड़ी नेमत है। बच्चे भी खुशहाल हो गए। अब उनके चौल्हे पर खाना पकने लगा था, लेकिन अब्दुल सलाम ने हमेशा अपनी बीवी को याद दिलाया, ये सब अल्लाह का करम है। कभी गुरूर न करना, हमेशा आजिज़ी अख्तियार करना। रूहानी तरक्की की पहली झलक। एक रात अब्दुल सलाम तहज्जुद के वक्त उठा। उसने वजू किया और नमाज पढ़ी। नमाज के बाद दिल से दुआ मांगी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर नूर बरस रहा हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और दिल की कैफियत बदल गई। उसने समझा कि यह हजरत गौस पाक की दुआ का असर है। उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत का चिराग रोशन हो गया। हजरत की नसीहत पर अमल। हजरत गौस पाक ने एक दिन फरमाया, जो बंदा दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए अपने खजानों के दरवाजे खोल देता है। अब्दुल सलाम ने उस नसीहत को अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया। अब वो हर रोज कोशिश करता कि किसी न किसी की मदद करे। अगर कोई गरीब मजदूर भूखा होता तो वो उसके साथ अपनी रोटी बांट लेता। अगर कोई यतीम बच्चा नजर आता तो उसके सिर पर हाथ फेरता और उसके लिए दुआ करता। लोगों का बदलता रवैया। पहले लोग अब्दुल सलाम को एक आम मजदूर समझकर नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन अब लोग उसकी इज्जत करने लगे। कोई कहता, ये वही सलाम मजदूर है ना, जिसे हजरत गौस पाक ने दुआ दी है। दूसरा कहता, हाँ, लेकिन अब देखो उसके चेहरे पर कैसा सुकून है। अल्लाह ने उसे अपना दोस्त बना लिया है। दिल की बड़ाई। अब्दुल सलाम के पास दौलत आ गई थी, लेकिन उसका दिल गुरूर से खाली था। वो अक्सर अपने दिल में कहता, या अल्लाह, मुझे कभी दुनिया की मोहब्बत में न गुम करना। मुझे हमेशा तेरे दर का सवाली बनाए रख। वो जानता था कि असल इज्जत दुनियावी शान और शौकत में नहीं, बल्कि आजिज़ी में है। ख्वाब में खुशखबरी। एक रात अब्दुल सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो एक बाग में है। बाग में नहरें बह रही हैं, दरख्तों पर फल लगे हैं और परिंदे तस्बीह पढ़ रहे हैं। अचानक हजरत गौस पाक वहां आते हैं और कहते हैं, बेटा, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा और सब्र को कबूल कर लिया है। तुम्हारे लिए ये बाग तैयार है। अब्दुल सलाम नींद से जागा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपनी बीवी से कहा, साबरा, हम फकीर थे, लेकिन अल्लाह ने हमें अपनी रहमत से माला माल कर दिया। असल कामयाबी यह है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। नतीजा, अब अब्दुल सलाम की जिंदगी न सिर्फ दुनियावी सुकून से भर गई थी, बल्कि रूहानी तरक्की ने उसे अल्लाह के करीब कर दिया था। वो एक आम मजदूर से अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन चुका था। उसकी गर्बत सुकून में बदल गई थी और उसका दिल ईमान के नूर से जगमगा रहा था।
मजदूर की जिंदगी अब बदल चुकी थी। गुर्बत अब भी मौजूद थी, लेकिन उसके दिल में शकवा, गम और मायूसी नहीं थी। वो अब एक मुतमईन इंसान बन चुका था। हजरत गौस पाक की सोहबत ने उसके दिल को नरम कर दिया था। उसके चेहरे पर एक अजीब नूर आ गया था और उसकी जबान से हमेशा शुक्र और दुआ के अल्फाज निकलते थे। गरीब मगर सखी दिल, वो पहले सिर्फ अपने लिए रोटी ढूंढता था, लेकिन अब दूसरों के लिए भी सोचने लगा। अगर कभी मजदूरी से 2 वक्त की रोटी से ज्यादा कमा लेता, तो लाजमी तौर पर कुछ हिस्सा किसी और गरीब को दे देता। उसका मामूल था कि घर जाते हुए अगर किसी यतीम बच्चे को देख लेता, तो अपने बच्चों के लिए लाई हुई रोटी का आधा हिस्सा उस यतीम के हाथ में दे देता। लोग उससे पूछते, भाई, तुम्हारे अपने बच्चे भूखे हैं, फिर भी दूसरों को देते हो? वो मुस्कुरा कर कहता, मेरा रब देने वाला है। हजरत गौस पाक ने सिखाया है कि जो अपने पास से देगा, अल्लाह उसको अपने खजाने से कई गुना ज्यादा लौटाएगा। खदमती खल्क का जज्बा, वो मोहल्ले के बीमारों की इयादत करने लग गया, ज़ईफ लोगों के काम कर देता और यतीम बच्चों को पढ़ाने के लिए वक्त निकालता। लोग हैरान रह जाते कि एक वही मजदूर जो कभी गुस्से में हर वक्त दूसरों से उलझता था, अब सबसे नर्म गुफ्तगू करता है और सबको सुकून देता है। मोहल्ले के बच्चे उसके पास बैठते और उसकी कहानियां सुनते। वो उन्हें गौस पाक के अक़वाल सुनाता और कहता, बच्चों, असल दौलत जमीन और जायदाद नहीं, बल्कि नेक अखलाक और दूसरों को सुकून देना है। दिलों को जीतना। एक दिन बाजार में एक अमीर आदमी ने उसको धक्का दे दिया। पहले वो मजदूर ऐसा होता तो फौरन झगड़ पड़ता, मगर उस दिन उसने मुस्कुराकर कहा, भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, शायद ये मेरी आजमाइश थी। वो अमीर आदमी हैरान रह गया। उसने मजदूर से माफी मांगी और कहा, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी गरीब मजदूर को इतना बड़ा दिल रखते देखा है। ये खबर पूरे इलाके में फैल गई कि ये मजदूर अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके अखलाक, उसकी आजिजी और उसकी सखावत ने लोगों के दिल जीत लिए। हजरत गौस पाक की नसीहत पर अमल एक दिन मजदूर फिर हजरत गौस पाक की मजलिस में पहुंचा। उसने अर्ज किया, हजरत, मेरा दिल सुकून में है, मगर मैं चाहता हूं कि मेरा अखलाक ऐसा हो जाए कि लोग मेरे जरिए अल्लाह को पहचानने लगें। हजरत गौस पाक ने फरमाया, बेटा, याद रखो, सबसे बड़ा इल्म यह है कि तुम दूसरों के साथ हुस्न सलूक करो। अगर तुमने अपने अखलाक से लोगों के दिल जीत लिए, तो समझो तुमने अल्लाह की मखलूक को अल्लाह से करीब कर दिया। ये अल्फाज मजदूर के दिल पर नक्श हो गए। अब वो जहां जाता, मोहब्बत और शफकत बांटता। उसकी जबान से कभी सख्ती के अल्फाज नहीं निकलते थे। इस रात रफ्ता रफ्ता उसके अखलाक का असर उसके मोहल्ले, बाजार और मजदूरी करने वाले साथियों पर भी पड़ा। कई मजदूर जो पहले शराब और फजूल आदात में पड़े रहते थे, उसकी सोहबत में बदल गए। लोग उसको देखकर कहते, ये गौस पाक की सोहबत का कर्म है, वरना हमने तो ऐसा मजदूर कभी नहीं देखा था। मजदूर का ईमान मजीद पुख्ता होना और माजिज़ा देखना। अब मजदूर की जिंदगी में एक नया दौर शुरू हो चुका था। उसका दिल हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहता। जबान पर शुक्र के कलमात और दूसरों के लिए दुआ होती। गुर्बत और मुश्किलें अब भी उसके साथ थीं, मगर उसका दिल मुतमईन और रोशन था। हजरत गौस पाक की सोहबत ने उसे एक ऐसा सुकून दिया था जिसकी मिसाल नहीं मिलती। एक कड़ी आजमाइश। एक दिन मजदूर के बच्चे शदीद बीमार हो गए। बुखार इतना तेज था कि वो कांपते जाते थे। मजदूर की बीवी रोती और कहती, हमारी तो दवा खरीदने की भी इस्तात नहीं, अब क्या करें? मजदूर ने अपनी बीवी का हाथ थाम कर कहा, गम न करो, मेरा अल्लाह बड़ा है। जब उसने हमें भूख में रोटी दी है तो वो बीमारी में शफा भी देगा। मैं हजरत गौस पाक की बारगाह में हाजिर होकर दुआ कराऊंगा। वो रात के अंधेरे में मस्जिद गया, वजू किया और सजदे में गिर कर रो पड़ा। उसकी जबान पर यही दुआ थी, अय अल्लाह, मेरे बच्चों को शफा दे। मैं तेरी रिजा पर राजी हूं, मगर इन मासूमों पर रहीम फरमा। गौस पाक की दुआ। सुबह सवेरे वो हजरत गौस पाक की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने लरजती हुई आवाज में अर्ज किया, हजरत, मेरे बच्चे बीमार हैं, दवा का भी इंतजाम नहीं, बराह करम दुआ फरमा दीजिए। हजरत गौस पाक ने उस मजदूर की तरफ देखा, मुस्कुराए और फरमाया, बेटा, यकीन रखो कि दुआ का असर तब होता है जब दिल में शक ना हो। तुम अपने दिल को मजबूत करो, अल्लाह इंशाअल्लाह तुम्हारे बच्चों को सेहत देगा। फिर आपने हाथ उठाए और दुआ की,
یا اللہ، اپنے اس بندے کے بچوں کو شفا عطا فرما اور اس کے ایمان کو مزید پختہ کر دے۔ کرامت کا ظہور مزدور جب گھر پہنچا تو اس نے حیرت انگیز منظر دیکھا۔ وہ بچے جو رات بھر تپتے ہوئے بخار میں تھے، صبح بالکل تندرست ہو چکے تھے۔ ان کے چہرے پر رونق واپس آ گئی تھی، وہ کھیلنے لگ گئے تھے۔ مزدور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اپنی بیوی کو دیکھ کر بولا، یہ ہے میرے اللہ کا کرم، یہ ہے حضرت غوث پاک کی دعا کی برکت۔ بیوی نے بھی سجدہ شکر ادا کیا اور کہا، واقعی اللہ کے ولیوں کی صحبت زندگی بدل دیتی ہے۔ ایمان کی پختگی اس واقعے کے بعد مزدور کا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا۔ اب اس کا یقین صرف اور صرف اللہ پر تھا۔ وہ کہتا، میرے اللہ نے مجھے بھوک میں روٹی دی، دکھ میں سکون دیا، بیماری میں شفا دی، پھر میں اس پر کیوں نہ بھروسہ کروں؟ وہ مزید عاجزی اور محبت کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آنے لگا۔ اس نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا کہ میں اللہ کے بندوں کی خدمت کروں گا اور اپنی آخرت سنواروں گا۔ دوسروں کے لیے روشنی اب لوگ اس کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے۔ کوئی غم سناتا، کوئی بیماری کی بات کرتا، کوئی غربت کا رونا روتا۔ مزدور انہیں حوصلہ دیتا اور کہتا، غم نہ کرو، اللہ سب کچھ بدلنے پر قادر ہے۔ دیکھو، میں بھی کبھی بھوکا رہتا تھا مگر آج میرا دل مطمئن ہے۔ یہ سب حضرت غوث پاک کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر کئی لوگ اللہ کی طرف مائل ہوئے۔ اس کے ایمان نے دوسروں کے ایمان کو بھی جگا دیا۔ اس حصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان اس وقت پختہ ہوتا ہے جب انسان مشکل وقت میں بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ کے دوستوں کی دعا اور صحبت دل کو روشنی عطا کرتی ہے اور معجزے ایمان کو اور زیادہ مضبوط بنا دیتے ہیں۔ انجام، سبق اور پیغام مزدور کی زندگی اب ایک روشن چراغ کی مانند تھی۔ وہ پہلے ایک گمنام، بھوکا اور مایوس انسان تھا، مگر حضرت غوث پاک کی دعا اور صحبت نے اسے ایسا مقام عطا کیا کہ وہ دوسروں کے لیے روشنی اور امید کا ذریعہ بن گیا۔ محلے کا بدلا ہوا ماحول، پہلے اس کا محلہ جھگڑوں، غصے اور محرومیوں سے بھرا رہتا تھا۔ لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے، چھوٹے چھوٹے مسائل پر نفرت پھیلتی، مگر اب جب سب نے اس مزدور کی تبدیلی دیکھی تو وہ بھی بدلنے لگے۔ بچوں نے اس سے سیکھا کہ دوسروں کے ساتھ پیار کیسے کیا جاتا ہے۔ نوجوانوں نے اس سے صبر اور محنت کی طاقت سیکھی۔ بوڑھوں نے اس کے اخلاق سے سکون پایا۔ عورتوں نے اس کے کردار کو دیکھ کر اپنے گھروں میں شکر اور قناعت اپنائی۔ پورا محلہ گویا ایک خاندان بن گیا تھا۔ مزدور کا مقام وقت گزرتا گیا۔ مزدور اب محلے کا بڑا سمجھا جانے لگا۔ لوگ اس سے مشورہ کرتے، اس کی دعاؤں پر یقین رکھتے اور اس کو عزت دیتے۔ وہ ہمیشہ عاجزی سے کہتا، یہ سب کچھ میرا نہیں، یہ سب حضرت غوث پاک کا فیضان ہے اور اصل کرم اللہ کا ہے۔ میں تو بس ایک حقیر بندہ ہوں۔ اس کے الفاظ دلوں کو چھو لیتے۔ حضرت غوث پاک کی آخری نصیحت۔ ایک دن مزدور دوبارہ حضرت غوث پاک کی مجلس میں گیا۔ اس نے عرض کیا، حضرت، میں تو ایک جاہل مزدور تھا، مگر آپ کی دعا اور صحبت نے مجھے بدل دیا۔ اب میری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہے؟ حضرت غوث پاک نے فرمایا، بیٹا، تم نے جو کچھ پایا ہے وہ دوسروں کو بھی دو۔ لوگوں کو صبر سکھاؤ، شکر سکھاؤ، خدمتی خلق کا جذبہ دو۔ یاد رکھو، اگر تم دوسروں کو اللہ کی طرف بلاتے رہو گے تو تمہاری قبر بھی روشن ہوگی اور تمہاری روح بھی کامیاب ہوگی۔ یہ نصیحت مزدور کے دل پر مہر کی طرح ثبت ہو گئی۔ مزدور کا آخری وقت کئی سال بعد، جب مزدور کا وقت وفات قریب آیا، اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا، بیٹو، یاد رکھو، غربت انسان کو کمزور نہیں کرتی، بلکہ انسان کا دل اگر اللہ کے ساتھ جڑ جائے تو وہ سب سے امیر ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا، یہی حضرت غوث پاک کا پیغام ہے، یہی اصل دولت ہے۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا، آنکھیں بند کیں اور سکون کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو گیا۔ محلے کے لوگوں کا حال جب اس مزدور کے انتقال کی خبر پھیلی تو پورا محلہ غمگین ہو گیا۔ لوگ روتے اور کہتے، یہ صرف ایک مزدور نہیں تھا، یہ ہماری زندگیوں کا چراغ تھا۔ اس نے ہمیں دکھایا کہ اصل عزت مال میں نہیں، بلکہ ایمان، اخلاق اور خدمت میں ہے۔ اس کی قبر پر لوگ آ کر قرآن پڑھتے، دعائیں کرتے اور اس کو یاد کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے۔ سبق اور پیغام اس پوری کہانی کا حاصل یہ ہے کہ غربت اور مشکلیں انسان کو نہیں توڑتے، بلکہ صبر اور اللہ پر بھروسہ انسان کو مضبوط بناتا ہے۔
حضرت غوث پاک جیسے اللہ کے ولیوں کی صحبت انسان کے دل کو روشنی اور زندگی کو سکون عطا کرتی ہے۔ اصل دولت سونا چاندی نہیں، بلکہ حسن اخلاق، شکر، صبر اور خدمت خلق ہے۔ اگر ایک مزدور اپنی نیت اور دعا سے بدل سکتا ہے تو ہر انسان بدل سکتا ہے۔ یوں یہ کہانی مکمل ہوئی۔ غریب مزدور کی کہانی، حضرت غوث پاک کا کرم، روحانی کہانی، نہ صرف ایک مزدور کی زندگی کی داستان ہے، بلکہ ہر اس انسان کے لیے سبق ہے جو مایوسی، غربت یا مشکل میں ہے۔